हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले मेथड्स एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की यूनिट 3 ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का पार्ट सेकंड। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप इस वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन। आज हम इस वीडियो में ये 6 टॉपिक कवर करेंगे। इमर्जेंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, व्हाट इज द न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, 3 मॉडल्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। What is the new institutional approach? New institutional approach is a methodological approach in the study of political science started in the US that explore how institutional structure, rules, norms and culture constrain the choice and action of an individual when they are the part of political institution. This approach became dominant around 1980s in US. New institutionalism tries to combine the interest traditional scholar who focus on the studying formal institutional rules and structure with the behavior scholar who examine the action of individual political actor. Institutions have special importance in political life. The fact that political behavior of the worker is also inspired by the organizations to which they belong. The importance of an institutional cannot be denied even in the modern governance system. The importance of institutions is also because it is through them that the political leader exercise power and use resources of organization. On the basis of institution, the student of political science try to understand political parties, electoral election system, bureaucracy, parliament, constitution and judicial system and sees them as a state. जो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और ये यूएसए में स्टार्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके रूल्स, नॉर्म्स और जो उसके कल्चर है वो एक उसके मतलब जो कल्चर है वो उसकी चॉइस और एक्शन पर बेस्ड होंगे जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में एक पर्सन जो काम कर रहा है, इंडिविजुअल जो उसकी इंडिविजुअल उसके थॉट्स हैं उस पर बेस होंगे। ये अप्रोच जो है ये डोमिनेंट हुई थी यूएसए में 1980s में। और जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है उसके जो स्कॉलर हैं उन्होंने अलग अलग स्टडीज़ की है इस पर, जैसे कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में क्या उनके रूल्स एंड स्ट्रक्चर होंगे। बिहेवियर स्कॉलर ने एग्जामिन किया है कि क्या इंडिविजुअल पॉलिटिकल एक्टर के क्या एक्शन होंगे, क्या उसकी चॉइसेस होंगी। और इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इन पॉलिटिकल लाइफ, और जो पॉलिटिकल बिहेवियर है किसी भी वर्कर का वो उस पर बेस्ड है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है और क्या वो एक्शन लेगा। 3 models of new institutionalism. Political science gave us historical institutionalism, economic gave us rational choice institutionalism, sociology gave us sociological institutionalism. जो इंस्टीट्यूशनलिज्म के बेसिकली 3 मॉडल हैं, पॉलिटिकल साइंस में हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इकोनॉमिक्स में रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। Historical institutionalism. It is an approach that focuses on how timing, sequence, and path affect the institution as a whole and also help in shaping political and economic behavior. Historical institutionalism as an approach developed in response to the group of supporters like pluralist on the other hand and the structural functional interpretation on the other. Historical institutionalism was more impacted by the structural functionalist. The structural functionalist idea of the polity as an overall system of interacting zone is accepted by the structural functionalist. जो historical institutionalism है वो फोकस करती है उसकी किसी भी एक सिचुएशन की क्या टाइमिंग है, उसकी क्या सीक्वेंस है और उसके पाथ डिपेंड करते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन के जो शेपिंग मतलब उसकी क्या बिहेवियर है।
पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या बिहेवियर है उस इंस्टीट्यूशन के, उस पर डिपेंड है, ये उसकी स्टडी है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि कुछ सपोर्टर है प्लूरलिस्ट जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल को इंटरप्रेटेट करते हैं, और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म काफ़ी इम्पैक्टफुल है इन द टर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म is totally a theory-based approach to the study of institution to maximize their uses and how that institution affect rational individual behavior। जो rational choice study है वो एक theory based approach है जिसमें कि जो study है वो institution पर की जाती है उसके जिससे कि हम उसके यूजेस और इंस्टीट्यूशन के जो इंडिविजुअल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन में जो काम कर रहे हैं इंडिविजुअल है उनके बिहेवियर को हम मैक्सिमाइज कर सकें। The rational choice institutionalism was primarily inspired by observation of sensation in the atmosphere of American congressional conduct, which could not be explained by the assumption of conventional rational choice academic। जो rational choice institutionalism है वो डेवलप हुई थी अमेरिकन कॉन्ग्रेशनल कंडक्ट के बेसिस पर, जिसमें कि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि उसके क्या अजप्शन होंगे रैशनल चॉइस एकेडमिक में किसी मतलब उसकी स्टडी पर। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म employs a character of set behavior assumption likely as that actor have a fixed set of preference or tasks। जो रैशनल चॉइस है इंस्टीट्यूशनलिज्म में उसमें एक करेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो एम्प्लॉय का करेक्टर है वो एक सेट ऑफ बिहेवियर पर अज्यूम किया गया है, जिसमें कि जो एक्टर है यानी कि जो एम्प्लॉय है उसके कुछ फिक्स्ड सेट होंगे और कुछ उसकी फिक्स्ड प्रेफरेंस होंगी और टास्क होंगे एज एन इंडिविजुअल। Sociological institutionalism, it defines institution are anything that provide frames of meaning guiding natural action is considered an institution। It break down the ideal rise between institution and society। The authorized structure were seen as the most rational and fruitful, and the apparent similarity in form of distance institution is said to be performed by the need to be rational, effective, efficient in working। The sociological institutionalists argue that fellowship continually adopt new institutional practice not because corresponding practice are more fruitful in the term of leading to asked end, but because like new practice enhance the acceptance or the legitimacy of the institution or its practice in the eye of public। जो सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है वो एक डिफाइन करती है फ्रेम ऑफ मीनिंग को, जिसमें कि वो गाइडिंग करती है एक नेचुरल गाइडिंग करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के नेचुरल एक्शन को, उसमें वो उस पर कंसीडर करती है और ब्रेक डाउन करती है जो आइडल राइज है बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। और जो ऑथराइज स्ट्रक्चर है वो बेसिकली रैशनल इंस्टीट्यूशन में फ्रूटफुल होता है, लेकिन ये इसमें भी लागू होता है सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बेटर परफॉर्म कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।